अस्सलाम वालेकुम जी, वी होप आप सब ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी अ डे इन द लाइफ डिस्कवरिंग जैसूर's वाइब्रेंट विलेज लाइफ। अच्छा, अर्बनाइज़ेशन तो हमने बहुत देखी, नई-नई बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन सब कुछ देखा। लेकिन देखा जाए तो बांग्लादेश का बीटिंग हार्ट है वहाँ की रूरल लाइफ। बिल्कुल। और एक हम वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन आज हम देखने जा रहे हैं जैसूर की विलेज लाइफ। तो मेरा ख़्याल है बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि सुना है कि जैसूर को वेजिटेबल कैपिटल ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है। चलते हैं वीडियो देखते हैं और फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, इससे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करने चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हम हैं आपके रिएक्टिंग नेबर्स। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। হিম হিম কুয়াশার আদরে পূর্বাকাশের অপরূপ লালিমায় শীতের এই ভোর যেন পটে আঁকা ছবি। শীত মানেই দেশের অন্যতম বৃহৎ সবজি উৎপাদন এলাকা হয়ে ওঠা যশোরে মাঠের পর মাঠ জুড়ে রকমারি শীত সবজির দারুণ দখলদারি। শীত মৌসুমে যশোর জেলার ৮টি উপজেলা জনপদের সবগুলো সদর, শার্শা, ঝিকরগাছা, চৌগাছা, কেশবপুর, মনিরামপুর, অভয়নগর এবং বাঘারপাড়া সবজি ফলানোর প্রতিযোগিতায় মেতে মিলেমিশে হয়ে ওঠে শীত সবজির রাজধানী। সবজি চাষিরা কাজ শুরু করেন খুব ভোরে। ঠান্ডায় জমে যাওয়া শরীরের কাঁপুনি থামাতে আগুনের ওম লাগে তাই। যশোরের সবজি চাষিরা প্রতি হেক্টর জমিতে ফুলকপি ফলান প্রায় ৩২ টনের মতো। শীতের জনপ্রিয় এই সবজি যশোরের ৮ উপজেলায় চাষ হয় প্রায় ৭৬০ হেক্টর জমিতে। পেঁয়াজ ক্ষেত থেকে প্রথমে মেলে পেঁয়াজ পাতা, পরে আস্ত পেঁয়াজ। খাবারে ভাগ বসায় বলে চাষিরা আগাছা তুলে ফেলেন নিয়মিত বিরতিতে। সবুজ ফুলকপি, ব্রোকলি। বাংলাদেশে কপি গোত্রের নতুন এই সবজির আবাদ এবং চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। ফুলকপির সাথে তুলনা করলে ব্রোকলি বেশি নরম, বেশি পুষ্টিকর, বেশি সুস্বাদু। ব্রোকলি চাষের জন্য ঠান্ডা আবহাওয়া লাগে, এজন্য শুধু শীতেই আবাদ হয়। ক্ষেতের সবজি হাটবাজারে চালান হয় সাধারণত দুবার, সকালে আর বিকালে। বেশি হয় সকালে। গরু টানা কাঠের লাঙল দিয়ে জমি কর্ষণের চল এখনও ঐতিহ্যের সুষমা বিলায় যশোরের ক্ষেত খামারে। লাঙলে চষা মাটিতে মোয়ের মলন পড়লে ঢেলা ভেঙে মাটি ঝুরঝুরা ও নরম হয়। খাদ্যকণা মেলায় পাখিদেরও পোয়া বারো। करके तो वहां से निकालता है, सोना निकालता है। हाँ, ये देखो। हाँ,
पूरा वो प्रोसेस दिखा रहे हैं कि करके अच्छे से हो गया। अब मेहनत देखो उनकी। ধরনভেদে কোনো সবজি চাষের জন্য খুঁটির অবলম্বন লাগে, কোনোটার জন্য জাংলা বা মাচা লাগে, কোনোটার আবার বেড়া বা জালের ঘেরাটোপ না হলে চলে না। प्रॉपर फील्ड देखो वो सारा उन्होंने जंगला बना के उसको कवर कर रहे हैं। যশোরে সারা বছরই সবজির আবাদ হয়, তবে আবাদের পরিমাণ এবং আয়োজন দুটোই বেশি শীতকালে। বাঁশ, পাটকাঠি, সুতলি, দড়ি, সুতার জাল সহ নানা উপকরণ দিয়ে জাংলা বা মাচা সাধারণত বানানো হয় নাজুক ও লতানো গাছের জন্য। সবজি চাষের কোনো কোনো জমি বীজতলার মতো আয়তাকার ও উঁচু থাকে, কোনো কোনোটায় জলসেচ ও জল নিকাশের ব্যবস্থা থাকে। পাখি, কীটপতঙ্গ ও গবাদি পশুর কবল থেকে ফসল বাঁচানোর জন্য বেড়া বা জালের ঘেরাটোপে এভাবে ঘেরা থাকে কোনো কোনো ক্ষেত। ক্ষেতের বাইরে এবং ভেতরে সবজি চাষিরা এভাবে নালা করেন জলসেচ ও জল নিকাশের জন্য। সযত্ন প্রয়াসে যশোরের ৮ উপজেলার সবজি চাষিরা কম বেশি ৩৩ ধরনের সবজি ফলান সারা বছর। জাংলা বা মাচার অবলম্বন পেলে ফলন ভালো হয় পটলের। যশোরে পটলের হেক্টর প্রতি গড় ফলন ২৩ টনের ওপরে। मेहनत देखो। हाँ हाँ, वो इससे बड़ी नर्सरी क्या हो सकती है। খেতে সবজি চাষের ধাপভিত্তিক কাজ চলে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। দুপুরের এই খাবার কর্মক্লান্ত চাষি ও কৃষি শ্রমিকদের শক্তি যোগায় বাদবাকি কাজের। যশোরে আবাদযোগ্য এক ফসলি জমি মাত্র ৫ ভাগ, ২ ফসলি জমি ৫১ ভাগের মতো, আর ৩ ফসলি জমি ৪১ ভাগ। যশোরে শস্যের নিবিড়তা ২৫০% কাছাকাছি। শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে ভূমিকা আছে কার্যকরী জলসেচ ব্যবস্থার। যশোরে ভূমি তুলনামূলকভাবে কিছুটা উঁচু ও শুষ্ক, অধিকাংশ এলাকা বন্যায় প্লাবিত হয় না। সবজি চাষিরা তাই জলসেচে ঘাটতি রাখেন না। ट्यूबवेल भी चलने के टाइमिंग्स होते हैं ना, उस हिसाब से फिर जिस पंप से पानी आपकी फसल को जितना पानी चाहिए वो उस हिसाब से कर रहे हैं। हाँ, ये देखो अब ये स्प्रे के लिए लेके जा रहे हैं। সার ও বালাইনাশকের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করে যশোরের সবজি চাষিরা প্রতি হেক্টর জমিতে গড়ে ফলান ২৩ থেকে ২৫ টন সবজি। এখানকার সবজি চাষিরা জায়েদ, খরিফ এবং রবি ৩ মৌসুমেই লাউ ফলান প্রচুর। ফলনে কিংবা পুষ্পশোভায়
পিছিয়ে নেই শীতের সবজি শিমও। আট উপজেলার প্রায় 630 হেক্টর জমিতে শিম ফলে যশোরে। প্রতি হেক্টরে ফলে প্রায় 16 টনের মতো। मटर इतना बड़ा था कभी। मैं तो देख के हैरान हो रही हूँ वहाँ माशाल्लाह जिस तरह से वेजिटेबल्स की वैरायटी है। এক নয় हमने तो দুই देखी ही নয় नहीं वो चीजें। বেশ কয়েক লেমন के প্রজাতির ऊपर শিম याद है ফলে आपको? যশোরে। 15 टाइप्स का सिर्फ हमने उस वीडियो के अंदर सिर्फ लेमन देखा था। সবজি যে প্রজাতিরই হোক অন্য ফসলের তুলনায় বেশি যত্নআত্তি এবং ধাপ ভিত্তিক देखो, পরিচর্যা बुढ़ापे লাগে। हैं। हाँ बस ये उन्हीं की वो सारी উদ্ভিজ্জ चीजें हैं। আমিষের বড় উৎস শীতকালীন সবজি মটরশুঁটি, যেমন পুষ্টিকর তেমনি সুস্বাদু। इतना बड़ा मटर तो बहुत हमने ख्याल कभी नहीं रखना पड़ता है इसकी फसल का मटर की। উপযুক্ত মাটি ও আবহাওয়া থাকায় যশোরের ৮ উপজেলাতেই আলুর আবাদ এবং বাম্পার ফলন। देखा। ये आलू की फील्ड है। দেশের সবচেয়ে বেশি কাঁচামরিচ ফলানো জেলা জনপদগুলোর একটি হিসেবে যশোরে কাঁচামরিচের আবাদ প্রায় 600 হেক্টর জমিতে। कितनी प्यारी लग रही है। आप देखो उनकी मेहनत है। हाँ ऐसे পেঁয়াজ आराम से नहीं উৎপাদনেও होती। বেশ এগিয়ে যশোরের সবজি চাষিরা। मामा फार्मर वैसे भी कंट्री का एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। हाँ किसी भी बिल्कुल country- ऐसे ही है। সবজির সাথে সাথী ফসল जो भी হিসেবে चीजें वहाँ पे grow होती দক্ষিণ हैं, वो পূর্ব उन्हीं की এশিয়ার वजह से। জনপ্রিয় ড্রাগন लेकिन ফলও उनको চাষ ना, করেন সবজি उस চাষিদের तरह কেউ की কেউ। मेहनत नहीं मिलती जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। মূল জাতীয় সবজি মূলার চাষ হয় প্রায় 1000 হেক্টরে। হেক্টর প্রতি ফলন 35 টন। मूली ऐसी चीज लगी। সবজির পাশাপাশি পুঁই সহ নানা রকম শাক উৎপাদনেও পিছিয়ে নেই এখানকার চাষিরা। তেল জাতীয় শস্যবীজ হিসেবে চাষ হলেও সরিষা পাতারও ভালো চাহিদা আছে শাক হিসেবে। বছরে প্রায় 32,000 হেক্টর জমিতে প্রায় 8 লাখ টন শাকসবজি ফলান যশোরের সবজি চাষিরা। 8 लाख टन। সবজির হেক্টর ऐसे প্রতি बन- সর্বোচ্চ बन जाते हैं ফলন हमारे पास। এবং দেশের সবজি চাহিদা পূরণে বিশেষ ভূমিকা রাখায় যশোর দেশ সেরা হিসেবে পেয়েছে দেশ জোড়া খ্যাতি। मेहनत से वो अब हमें और कदर होगी जब हम सब्जी देखेंगे। ये देखो टोकरे बड़े बड़े साइज के हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। যশোরের ক্ষেত খামারের শাকসবজি उन्होंने खुद करना স্থানীয় है। হাট हाँ, सब বাজার कुछ ও खुद মোকাম হয়ে নানা ধরনের যানবাহন ভরে চালান হয় সারা দেশের নানা গন্তব্যে। हाँ ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের অনেকগুলো দেশে যশোরের মানসম্মত শাকসবজির রপ্তানি দিন দিন বাড়ছে। अब हमने कितनी बार अर्ली मॉर्निंग ट्रेवल किया तो ऐसे ही हम ट्रक भरे हुए देखते हैं ना सब्जियों के। অনেকগুলো নামকরা সবজি মোকাম আছে যশোর ये জেলার मार्केट में নানা अब आ জায়গায়। যশোর ঝিনাইদহ মহাসড়কের ধারে জমজমাট এই মোকামটি যশোর সদরের চূড়ামনকাঠি বাজারে। मकामी मंडियों में लेकर आ रहे हैं। अच्छा मूली भी देखो एक खास साइज की है। साइकिल के কাছেও टोकरे দূরের में ক্ষেত খামার থেকে বাঁধাকপি সহ সব ধরনের শাকসবজি এই মোকামে আসে পাইকারি দরে বিক্রির জন্য। ये सारे शॉपकीपर्स हैं जो उनसे परचेज कर रहे हैं। ब्रोकली कितनी खूबसूरत लग रही है। ঢাকা, শরীয়তপুর, রংপুর, দিনাজপুর সহ নানা জায়গায় ব্যাপারী ও পাইকাররা দরাদরি করে সবজি কেনেন এখানে। सब्जी लेने हैं। इस तरह की सब्जी আকারে ফুলকপি বড় লাগাতে हैं। আর তরতাজা বলে आज সারা गोभी দেশ बुलाते हैं। জুড়ে জনপ্রিয় যশোরের ফুলকপি। अरे वाह ऐसे गोभी लेके आनी है। हाँ ये होती है सही वाली। इस
इस तरह की गोभी रोज रोज यहाँ तक नहीं पहुँचती। ये নানা ये तो প্রজাতির fresh মূলা देख रहे हो आप। মোকামে ওঠে পর্যায়ক্রমে। Check करो, colours অন্য देखो। সবজির তুলনায় বিক্রি হয় लाल সাশ্রয়ী मूली মূল্যে। थी, सफेद रेडिश कहते हैं इसको। साइज देखो ना, गुदी गुदी और एक मीडियम साइज में है। हाँ। अच्छा, মূলার ये মতো मटर, এখানে শিমও বিকোয় নানা প্রজাতির। ये देखो কেশর আলু, হালকা মিষ্টি वाह, স্বাদের এই আলু मीठा খাওয়া होता है যায় ना। এমনি এমনি। दादी की What तुली is हुई है this? सब्जी बिल्कुल। যশোরে বেগুনের চাষ প্রায় 500 হেক্টরে, बेगन, ফলনও हाँ। প্রতি हरा হেক্টরে बैंगन हमने देखा 34 था টন। पहले यहाँ पे। মোকামে তাই বেগুন हरा बैंगन। প্রচুর, দামও প্রতিযোগিতামূলক। हमारा तो ब्लैक में होता है ना यहाँ पे, डार्क पर्पल। শীতকালীন टमाटर। টমেটো এখন প্রায় সারা বছরই মেলে মোকামে। हाँ। और देखो हर कैटेगरी में वो अलग रखा हुआ अलग। है। अब हमारा কি टमाटर भी সবজি सस्ता কি हो गया, आपको শাকের पता দাম মৌসুমের শুরুর দিকে বেশি থাকে, সরবরাহ বাড়লে কমে আসে। है। ये इसका नहीं पता ये क्या चीज है। हाँ, इसके बारे में जरूर बताइएगा ये क्या होता है। মাছের সেরা রুই, শাকের সেরা পুঁই, সেরা এই পুঁই শাক প্রচুর বিকোয় এখানে। ये आ गया ना। हाँ। লাল শাক, সবুজ শাক ও পালং শাক, শুধু এই 3 শাকই যশোরে চাষ হয় প্রায় 800 হেক্টর জমিতে। 800 एकड़ जमीन के ऊपर किया जाता है इसको। हाँ। इसका जायका भी मुख्तलिफ है। বোত্তা শাক সহ हम तो सरसों का হরেক साग भी রকম खाते हैं শাক ना यहाँ ওঠে पे। এই মোকামে। हमारे यहाँ भी কোনোটা variety কম बहुत है। প্রচলিত, কোনোটা বেশি জনপ্রিয়। हाँ, वो देखो वो धनिया आ गया। हाँ। बनाना। This is banana। लाल সবজি नहीं, বৈচিত্র্যের वो অভাব कच्चा নেই होगा। এই মোকামে। এমন শাক বা সবজি প্রায় Totally নেই different বললেই types। চলে, যা যশোরের সাথে সবজি মিলেছে। চাষিরা ফলান না, আর এমন সবজি মোকামে তা বিকোয় না। अब इन सब्जियों के बारे में आपने यहाँ দেশ से थोड़ा জুড়ে हमें बताना সবজি है। চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশকে বিশ্বের তৃতীয় অবস্থানে রাখতেও মূল ভূমিকা রাখছে শাকসবজির রাজধানী যশোময় এই যশোর। वो सर्दी के टाइम के ऊपर की वीडियो है ना। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत वीडियो थी। यकीन जाने दिल से अल्लाह का शुक्र निकलता है जब हम इस तरह की नेमतें देखते हैं। बहुत खूबसूरत जगह। लैंड वाइज अगर बात की जाए तो बांग्लादेश एक स्मॉलर कंट्री है लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही। उसके बावजूद 98% लैंड जो है वो वहाँ का बहुत ज्यादा फर्टाइल है बिल्कुल ऐसे- ऐसा और ही वो है। सारी चीजें हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं। बिल्कुल। ऐसा ही है, लेकिन आप ये चीज देखें कि जब मानसून का सीजन आता है और रिवर्स फ्लड कर जाते हैं, अपने हाँ। बैंक से बाहर आ जाते हैं, तो काफी ये फर्टाइल लैंड अंडर वाटर आ हाँ, जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। कल्टीवेशन तो हो नहीं सकती बिल्कुल उस ऐसे ही, टाइम पे। लेकिन उसके बावजूद जैसे ही वो पानी रिसीड करता है तो साथ ही वहाँ पे फार्मिंग स्टार्ट हो जाती हाँ। है। बिल्कुल। और एक चीज ये भी है कि जब वो पानी आया होता है, जैसे उसका लेवल नीचे होता है, राइस स्टार्ट हो जाती है, हाँ, राइस फील्ड हाँ बन जी। जाती है। और ये चीज तो हमने भी सुनी है कि बांग्लादेश के अंदर हर साल 3 राइस जो है वो हार्वेस्ट किया जाता है, 3 दफा राइस 3 को। दफा हार्वेस्ट और वैसे एक बात ये है कि वेजिटेबल्स वगैरह हमने अमूमन मार्केट्स में देखे हैं कि सुबह सुबह से ट्रक्स भर भर के हाँ। जा रहे होते हैं, लेकिन आज सही मानों में हमें देखने को मिला है कि पीछे से कैसे इसको हमने लेके आया एक्चुअली जाता उस है। जर्नी का हाँ। स्टार्ट देखा है कि ये सब कुछ बिल्कुल शुरू किस ऐसा तरह ही है। एक्चुअली हम लोग जब बाहर ट्रेवल करते हैं ना तो अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे या अभी हम लोग रात को 3 बजे 4 बजे का टाइम होता हम निकले तो हम लोग नॉर्मली ये चीजें विटनेस करते थे कि भाई ट्रक्स जो हैं वो भरे हुए आ रहे हैं, किसी में गोभी जा रही है तो किसी में शलजम है, किसी में कुछ है। हम उस चीज को बहुत एडमायर करते थे और फिर सुबह सुबह जब आपको फील्ड्स में फार्मर्स नजर आते हैं हाँ, वो जब चीजें हाईवे पे होते हैं तो और आपको अपने हैं, लेफ्ट हाँ, राइट ये सब कुछ नजर नजर आ आता रहा है। होता है। हाँ। लेकिन इस वीडियो में जी, वो जी। वीडियो शुरू ही वहां से होती है कि किस तरह से फार्मर सुबह सुबह उन खेतों में आते हैं और किस तरह से वो अपने लैंड को तैयार करते हाँ हैं जी। और वो पूरा आप देखो कि कितनी डिटेल में वो प्रोसीजर दिखाया गया बिल्कुल है बिल्कुल ऐसा ऐसा ही ही है। है। आप ये देखें ना कि एक तो बात ये है कि फार्मर बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पालता है उस खेत को। हाँ, और ये बात हमने बिल्कुल। सुनी ये हुई थी सुनी ना, हुई थी, तो आज देख हमने लो, देखी है, देख बिल्कुल। लो। आप देखिए कितनी मेहनत से वो पूरे के पूरे जो अपने खेत है उनको खेत का, तैयार हाँ। करते हैं और उसके बाद जब आगे से फसल उगती है तो कितनी ज्यादा खूबसूरत
खूबसूरत है, लगती हाँ, है। और उसके साथ आप देखो जिस तरह उन्होंने प्रोटेक्शन की हुई है खेतियों के बाद, इस जी। तरह के होते हैं फल वेजिटेबल जिस तरह के होते हैं जिसको बर्ड्स भी खाते हाँ हैं, जी। हाँ। तो किसी पे नेट लगा रहे हैं, किसी पे शेड लगा रहे हैं, बिल्कुल, वो सारी इसी प्रोटेक्शंस तरह भी से हमने है। देखी। और फिर जब आप देखो कि वो सारी फसलें तैयार हो जाती हैं और वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स आपको नजर आती हैं, तो दिल से अल्लाह का शुक्र निकलता है। बिल्कुल। यकीन जाने इतनी ताजी ताजी सब्जी, खास तौर पे जब हमने गोभी को देखा तो हम आज वही बात कर रहे थे कि ऐसी गोभी होनी चाहिए और हम इसी को बनाएंगे मैं आज। कल ही गया था मार्केट गोभी लेने के लिए और बिल्कुल मजा नहीं आया देख हाँ, के। नहीं, वो- आज जब देखा है ना तो ऐसे लगा जैसे पहली दफा ताजी गोभी को देखा। दिल खुश दिल होता है ना खुश देख के, ब्रोकली देख के इतना दिल खुश हुआ। उसके बाद आप देखो कि वैरायटी ऑफ आपको ग्रीन लीव्स नजर आ रहे हैं हाँ वहां जी, पे, बिल्कुल। हरी मिर्ची आपको नजर आई, बहुत सारी चीजें ऐसी, बिल्कुल। और बहुत सी सब्जियां ऐसी थी जिनकी यकीन माने नाम हमें ही नाम नहीं नहीं पता। आप देखे ना एक ही जमीन है लेकिन वैरायटी ऑफ हार्वेस्ट आपने देखी आज। हाँ, बिल्कुल इसी तरह से। फिर टमाटर देखो, जी। वो कच्चे से लेके ग्रीन, कच्चा, उसके रेड वो वगैरह, करते करते हाँ जी। करते आपको पूरा पका हुआ लाल टमाटर भी वहां पे नजर आ रहा है। और फिर जो एक जर्नी है खेतों से वो फ्रॉम द फार्म टू द चलते हैं। टेबल, वो वाली जो जर्नी है वो हमने और आप देखी। देखो कि जब मार्केट में आ हाँ जाते हैं जी। वेजिटेबल्स तब एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है हाँ, साइड इस बिल्कुल जर्नी। ऐसे आप देखिए, उन्होंने बताया कि इतने दूर दूर से होलसेलर्स आते हैं अपनी मार्केट्स के लिए, अपनी शॉप्स के लिए परचेज करने के लिए, और किस तरीके से वहां पे सुबह वो एक हसल बसल चल रही होती है, वो हाँ। बहुत ज्यादा खूबसूरत बिल्कुल लगती इसी है। तरह से है। बहुत खूबसूरत वीडियो है। और मैं फिर बार बार वही बात रिपीट करूंगी कि ये चीजें जब आप देखते हैं, एक इंसान, एक किसान, बल्कि फार्मर जी। की यहाँ बात करेंगे कि वो जब मेहनत करता है और फिर उसको उसका फल मिलता है ना, तो यकीन करें वो तो जितना शुक्र करता होगा, हम देख के उस चीज का शुक्र अदा कर बिल्कुल, रहे हैं। दिल से अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बांग्लादेश एक इस तरह की लैंड है जहाँ पे अल्लाह ने बेशुमार नेमतें अता की हुई हैं। तो बहुत खूबसूरत वीडियो है। बाकी आप बताएं आज की वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसे लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए।